Welcome to Tripura Info News Update. In response to the prevailing weather conditions, the Chief Minister of Tripura convened an urgent review meeting this evening with the Chief Secretary and Secretary Shri Brijesh Pandey, IAS, Secretary of the Revenue and Disaster Management Department. The Chief Minister also directed officials to brief the media and ensure that the general public is well informed about the evolving situation and the government's course of action. Addressing the media, Secretary Shri Brijesh Pandey, IAS stated that as per the latest report by IMD at 1 pm today, a depression over Bangladesh was located about 110 kilometers northwest of Dhaka. Secretary Shri Brijesh Pandey, IAS further informed that the system is expected to move north-northeastwards and gradually weaken over the next 12 hours. Secretary Shri Brijesh Pandey, IAS elaborated that under the influence of this system, heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall, accompanied by squally to gusty winds, is likely across Tripura. He confirmed that the IMD has issued a red warning for North Tripura and Unakoti districts, valid till 8:30 am on May 31, 2025. An orange warning has been issued for the rest of the districts. Shri Pandey emphasized that the state government, upon receiving early warning inputs, had issued advisories to all district magistrates and concerned departments on May 28, 2025. These advisories kickstarted preparedness and response mechanisms at the district level. A public advisory was also released on the same day to keep citizens informed. To bolster readiness, Shri Pandey noted that NDRF and SDRF teams have been kept on standby across all districts. Additionally, trained community volunteers have been mobilized and equipped for emergency response. Shri Pandey confirmed that localized disruptions caused by heavy rainfall were swiftly addressed in areas like Panisagar, Longthare Valley, Jampujla, Jirania, Mohanpur, Sadar, Kabuk, and Sabrom. These operations involved coordinated efforts from the SDRF, TSR battalions, Forest Department, and community volunteers. Damage assessments are currently ongoing across all affected districts. Providing an update on river conditions, Shri Pandey informed that as of 6 pm today, the Howrah River in Agartala, Jahar Bridge, recorded a water level of 10.01 meters, slightly above the danger mark of 10 meters. However, the level has been stable for the past hour. All other rivers in the state remain below their respective danger levels. Real-time monitoring is being conducted by the State Emergency Operations Center, SEOC, in coordination with the Water Resource Department and Central Water Commission. Shri Brijesh Pandey, IAS, reiterated that the government continues to remain on high alert. He appealed to the public to stay indoors, follow government advisories, and remain vigilant during this critical weather period. सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैंने बुलाया और आप सब लोग यहाँ आज उपस्थित हो गए हैं। आज जो वेदर सिचुएशन है उसी के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये बताऊँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभी थोड़ी देर पहले करीब 2 घंटे पहले इन्होंने सिचुएशन रिव्यू की, जिसमें मैं उपस्थित है, रेवेन्यू सेक्रेटरी उपस्थित थे, चीफ सेक्रेटरी उपस्थित थे। उसके अलावा भी वो रेगुलर टाइम पे हमसे ब्रीफ लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो हमने उनको ब्रीफ किया है और उन्हीं ने हमें एडवाइस किया कि क्यों ना हम जो है पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें, उन पब्लिक को भी बताएं कि इस समय क्या सिचुएशन है और क्या क्या स्टेप स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। इसीलिए मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी जो 1 बजे रिपोर्ट आई थी, जो हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो ये डिप्रेशन था एक्चुअली जिसकी वजह से बहुत सारी रेंस हो रही हैं, वो जो है अभी जो बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में ढाका से करीब 110 किलोमीटर उसके जो है नॉर्थ वेस्ट में अभी भी स्थित है और धीरे धीरे वो मूव करेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ और लगभग 12 घंटे में हम आशा है आईएमडी की रिपोर्ट आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार कि धीरे धीरे और कम होता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो डीप डिप्रेशन है, इसकी वजह से बहुत हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बहुत सारी जगह पर होनी है और साथ में कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि एक्सट्रीमली बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इसके अलावा जो स्क्वेल इवेंट से जो हवा चलती है वो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की कुछ जगह हो सकती है, वरना 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रहेंगी। और आपको बताया होगा कि आज भी जो है हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन जो आईएमडी ने अभी भी 2 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी किया, जो नॉर्थ त्रिपुरा उनाकोटी में, कि वहाँ पर रेड अलर्ट है। दैट मीन्स वहाँ पर
वेरी हेवी रेन हो सकती है, एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकती है। बाकी सब जगह में ऑरेंज अलर्ट है। और जो सिचुएशन जो मेरे ख्याल से जो वर्स्ट सिचुएशन थी वो ऑलरेडी ओवर हो गई है, और धीरे धीरे रात में और कल दोपहर तक में सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। आपको बताना चाहूँगा कि 28 तारीख को हमको जब ये रिपोर्ट मिला था कि जो ये वेदर सिचुएशन डेवलप हो रहा था, तो उसके बाद इमीडिएटली हमने एक्शन लिया, और जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर्स है और जितने हमारे रेलिवेंट जो लाइन डिपार्टमेंट होते हैं उनको हमने कैश मैसेज भेजा और इनको इन्फॉर्म किया। उस रिपोर्ट के हिसाब से 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था, 29 मई को रेड अलर्ट था, और 30 मई जो आज है वहाँ पर जो ऑरेंज अलर्ट था। आज जैसे मैंने बताया 2 डिस्ट्रिक्ट में अभी रेड अलर्ट है, बट खतरे की कोई बात नहीं है। और उसके अलावा जो है हमने डीएम के साथ मैंने डायरेक्टली बात किया और उनको प्रिपेयर्डनेस के लिए बताया, उनको हमने मैसेज भी दिया, सारे डिपार्टमेंट रेडी हो गए हैं। और इसके अलावा हमने एक प्रेस रिलीज भी किया था जो आपको मिला होगा 28 मई को, जिससे कि पब्लिक तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जैसे प्रिपेयर्डनेस के बेसिस पे जैसे ये सूचना मिली, उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट ने जहाँ पे एनडीआरएफ है, वरना हमारे पास एसडीआरएफ और टीएसआर है, वहाँ पर तुरंत हमने उनकी टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा कि कहीं भी जरूरत पड़े तो उनको एक्ट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। और साथ में हमने जो ट्रेन वॉलंटियर्स हैं जैसे एनसीसी कैडेट्स हैं, उन सबको भी एक्टिवेट कर दिया है, इवन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एक्टिवेट किया कि कहीं भी जरूरत होगी तो हम लोग एकदम रेडी हैं। और मैंने जैसे पहले बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और लाइन डिपार्टमेंट जहाँ भी जरूरत है उनके साथ में ऑलरेडी टच में हूँ। और जो अभी तक जो 3 दिन में 28, 29, 30 में जो रिपोर्ट आई है, जो डैमेज रिपोर्ट है, उसके हिसाब से एक कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है कि एक पर्सन जिरानिया सब डिवीज़न में डाउन हो गया है। वो कैसे हुआ अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, बट जो न्यूज़ आई है ये हमारे पास जो खबर आई है जो हमारे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पे आते हैं उसके हिसाब से एक पर्सन डाउन हुआ है। इसके अलावा 106 हाउसेज डैमेज हुए हैं, जिसमें सीवियरली 33 है और पार्टली करीब 73 है। इसके अलावा 4 रिलीफ कैंप हम लोगों ने खोले हैं, जिसमें से 3 रिलीफ कैंप वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में खोले गए और एक खोई में खोला गया, जिसमें 57 फैमिली रह रही हैं और जिसमें 207 लोग टोटल पर्सन जो हैं। इसके अलावा बहुत जगह पावर की, रोड की रिपोर्ट आई है, क्योंकि बहुत जगह विंड की वजह से हवा जो चली ना, तो बहुत जगह पेड़ और गिरे, और जिसमें से ज़्यादातर जो प्रभावित हुए वो है पानी सागर, लॉन्ग तराई वैली, जम्पुई जिला, जिरानिया, मोहनपुर सदर, कॉर्बुक एंड सब्यूम जो सब डिवीज़न जो वहाँ ज़्यादा प्रभाव हुआ है। लेकिन जहाँ जहाँ भी ये ऐसी खबर आती है तुरंत पावर की हमारी टीम्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और जो उससे पहले जो ट्री कटिंग की टीम्स जो डिप्लॉय कर रखा है वो तुरंत एक्टिवेट होती है, ट्री कट करती हैं, उसके बाद पावर लाइन हम लोग रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कम्युनिटी वॉलंटियर्स जो हैं वो भी हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। और जो डैमेज हुआ है उसका भी हम लोगों ने आज से काम शुरू कर दिया है, और 3-4 दिन में हम पूरा डैमेज असेसमेंट कर लेंगे, क्योंकि अभी भी ये चूँकि ऑरेंज अलर्ट है और हो सकता है कल परसों भी कुछ डैमेज हो, तो अगर कुछ होता है वो भी हम लोग उसका काउंटिंग करते रहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा कि जो रिवर जो पानी का जो लेवल है नदी में, उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। एक्चुअली हर 2 घंटे में हम लोग उसकी रिपोर्ट लेते हैं, और कहीं ज़्यादा सीरियस हो तो 1 घंटे आधा घंटे में भी रिपोर्ट आ जाती है, और इसको हमारा वाटर रिसोर्स जो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है वो मॉनिटर करता है। इसके अलावा हम सेंट्रल वाटर कमीशन भी हमको रिपोर्ट देता है, और लोकल जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ है वो भी हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसकी हम इन्फॉर्मेशन एकदम क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो अभी 6 PM पे जो हमें लास्ट रिपोर्ट मुझे मिली थी, उसके हिसाब से हावड़ा रिवर पे एक्चुअली 10 मीटर के पास है जो हावड़ा रिवर है, और ये क्रिटिकल लेवल पे है, और करीब 1-1.5 घंटे से उसी लेवल पे है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत बढ़ेगा, और वरना स्टैगनेंट है, और धीरे धीरे आशा है कि कल सुबह तक ये रिड्यूस होने लगेगा, हो सकता है रात में भी रिड्यूस हो। तो देखते हैं, हम लोग सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी मेजर रिवर में कहीं भी सारी जगह जो वाटर लेवल है वो बिलो क्रिटिकल लेवल ही है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हमारा 24/7 एक्टिवेट कर जा चुका है। वहाँ पर लोग हैं, अगर कॉल करेंगे तो रिपोर्ट करेंगे, और कुछ भी क्राइसिस, कुछ भी सिचुएशन की जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम वहाँ रिसीव करते हैं, उसके बाद जो एक्शन लेना होता है उसको डिसेमिनेट करते हैं। वेस्ट त्रिपुरा में भी, चूँकि यहाँ पर हावड़ा का जो मैंने आपको रेफरेंस दिया, तो वहाँ भी वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी डीएम से इनफैक्ट जस्ट आने के पहले ही बात हुई, तो वहाँ पर उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो भी ज़रूरत है उसकी सफिशिएंटली मतलब टीम को रेडी करके रखा है। इसके अलावा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को रेडी कर रखा, और बोट्स भी रखें कि अगर कहीं पर कुछ घरों में अगर पानी भरता हो, कहीं इवैक्यूएशन कराना, तो हम लोग तुरंत डिप्लॉय कर लेंगे।
इसके अलावा रेनफॉल की जरूर में बारिश इतनी हो रही है तो मैं बताना चाहूँगा। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.